Good morning to all my dear students. Today we are discussing about the our new chapter that is called as the electrostatics. The first three online lectures we have already done with the help of Google Meet. In that three lectures we discuss about the electric charge. That means the completely definitions of the electric charge and the some brief history related with the our electric charge. The history, it is starting from the before the 600 BC from a Greek. The electric charge we are founded with the help of one kind of the rod that is called as the glass rod, or another one instrument we are used for find out the electric charge that is called as the fur. With the help of these instrument we are find out the electric charge. Similarly, we find out the positive as well as the negative charge and what is the nature of this charge. That means when they are attracted, when they are repelled, and which kinds of the action are formed on the electric charge. So after that we discuss about the basic property of the electric charge. In that basic electric of the electric charge, one things just for a moment. Okay, this is our the online lectures. In that the we discuss about the basic properties of the electric charge. In that, firstly, we studied about the additive nature of charge. That means how the electric charge are work, and simply when we are discussing about the nature of that charge, we find out it is similar to additive properties as like the mass, and mass having the complete in a discrete form. That means it is found in a integral numbers. So after that we discuss about the quantization of charge. Third one properties we discuss here, that is the conservation charge. That means the charge may get transferred from one part of the system to another, but the total charge in the system remain constant. It is completely related with the our isolated system. So another one, that is forces between the charges, and in that forces between the charges, the like charges like the positive charge, similarly unlike charges, that is negative positive charge. And what happens, such kinds of like charges and unlike charges are get nearer to each other, which actions are held in that two charges. Means simply when the two positive charges or negative charges are close to each other, at that time the charges are repelled to each other. When one kind of the positive charge and one kind of the negative charge are gathered, are nearer to each other, it is just attract to each other. Similarly, when the negative and positive is nearer to each other, they also are the attracted. That simply like charges are repelled and unlike charges are attracted. It is studied in our first three online lectures, which is goes with the help of our Google Meet. So today we are discussing about the Coulomb's law. In that Coulomb's law, the such points we are discusses
like the scalar form of Coulomb's law. First one, this point. Second point we are discussing here, that is the relative permittivity or dielectric constant. And our next lecture we are discussing about the, in third one, that is we are discussing about the definition of charges, definition of unit charge, that means simply called as the definition of a unit charge from Coulomb's law. Because we know very well, when we discuss about the first three lectures, in that we know very well the charge having the unit of Coulomb in SI unit, charge is counted in the form of Coulomb. So the third one point which is related with the Coulomb's law, that is called as the definition of unit charge. And the another one point we discussed in the next lecture, that is called as the Coulomb's law, which is in a vector form. तो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये वाला थर्ड पॉइंट है, ये वाला 4 पॉइंट है, और जो पहला और दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है निकल के, दैट इज कॉल्ड एज द स्केलर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ, और सेकंड वन दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हम लोगों को स्टडी करना है जब हम लोग देखेंगे कि Coulomb's लॉ क्या होता है. और जब हम लोग Coulomb's लॉ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ये वाला जो पहला वाला जो टॉपिक आता है, दैट इज स्केलर फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ, ये एक देखना होगा हमें. उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और जो तीसरा निकल के आएगा, जो कि हम आज के लेक्चर में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम उसको देखेंगे तो वो होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्जेस फ्रॉम दी Coulomb's लॉ. और जो हमारा आखिरी वन होगा जो कि इसके रिलेटेड, तो उसको कहे जाएंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म. सो ये जो सिंपली हम लोगों को Coulomb's लॉ देखना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग करेंगे, यहाँ पे हमारा रफ वर्क होगा, यहाँ पे हमारा रफ वर्क होगा. और ये जो PDF है, ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने सेंड कर रखी है आपके कॉलेज के ग्रुप पे, और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसकी लिंक दे देंगे आपको Coulomb's लॉ की. तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज Coulomb's लॉ, कि ये Coulomb's लॉ क्या है. तो हम लोगों को सिंपल पता है कि जो इलेक्ट्रिक इंटरैक्शंस होता है, कोई भी दो चार्ज बॉडी होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव निगेटिव हो, कोई भी बॉडीज होते हैं चार्ज बॉडीज, उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटरैक्शंस होता है. मानो अगर दो सेम चार्जेस वाले अगर इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन होता है तो वो रिपेल हो जाएंगे. लेकिन जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो इसको सिंपली हम लोग क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटरैक्शंस होता है कोई भी चार्ज बॉडी को लेकर, तो इसके अंदर जो भी फोर्स एग्जर्ट्स होता है, वो फोर्स कोई भी दो बॉडी के भीतर ही एग्जिस्ट होगा. समझ लो, इसको थोड़ा सा हम इजी करते हैं कि इनका क्या होता है. सिंपली अब मानो ये वाली एक बॉडी है आपकी, यहां पे और एक बॉडी है हम लोगों की. सबसे पहले मानो ये बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है. तो जो कोई भी फोर्स एग्जर्ट होगा, अब इसके अंदर तो हम लोगों को पता है कि जो फोर्स एक्ट होगा इसके अंदर वो होगा रिपल्सिव फोर्स. लेकिन ये एग्जर्ट्स कहां होगा, ये एग्जर्ट्स होगा यही दो बॉडी के भीतर. लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी पॉजिटिव लेते हैं, एक बॉडी निगेटिव लेते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों के भीतर अट्रैक्शन होगा. दो बॉडी जो कि अनलाइक चार्जेस को बताते हैं, अनलाइक चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके भीतर क्या होगा कि ये दो बॉडी जो है वो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे.
अब ये जो कूलम्स लॉ है हमारा, अब ये जो साइंटिस्ट थे हमारे कूलम, इट परफॉर्म द ग्रेट वर्क इन आवर फिजिक्स। इनका जो लाइफ स्पैन बताया गया है हमें अकॉर्डिंग टू आवर बुक, वो था 1736 से लेकर 1806 के भीतर। अब इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्वेस्टिगेट किया या नो इसको इंट्रोड्यूस किया, तो जब इन्होंने इनको इन्वेस्टिगेट किया या इनको इंट्रोड्यूस किया, तब इन्होंने सबसे पहले उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने सिंपली बताया कि कुछ फोर्स है जो कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड जानकारी देते हैं। बाद में हम लोगों को पता चला कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या करता है, ये हम लोगों को बाद में पता चला। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने स्टडी की, जब उन्होंने इनको इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने क्या किया कि इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और वो उसमें सफल हो गए। तो जब उन्होंने इस क्वांटिटेटिव फोर्स को लेकर या इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर स्टडी करना चाहा, तब उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो पॉइंट चार्जेस लिए उन्होंने, जो भी पॉइंट चार्जेस लिए, मतलब उन्होंने जो कोई भी चार्ज लिया, वो चार्ज एक रेस्ट पोजीशन में था। चार्जेस किसमें थे? वो एक रेस्ट पोजीशन में चार्ज थे, और उस रेस्ट पोजीशन वाले चार्ज को उन्होंने क्या किया? इंटरैक्शन किया। उन्होंने क्या किया? इंटरैक्शन किया। दैट मीन्स उन्होंने इंटरैक्ट किया उसको। अब जब उन्होंने इंटरैक्शन किया, तब उनको पता चला कि कुछ तो फंडामेंटल लॉ है इसके भीतर, इसके भीतर कोई ना कोई तो एक फंडामेंटल लॉ है, जो कि ये दो चार्जेस जब रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो उसके अंदर वो इंटरैक्ट होता है। अब इसको मैं जोड़ता हूं हमारे न्यूटन्स को लेकर। न्यूटन्स ने क्या किया था? एक ऐसा पेड़ था, पेड़ का ऊपर ये जो फ्रूट था, ये फ्रूट जब जमीन पे आ गिरा, तब इसको देख के उन्होंने क्या किया था? हम लोगों को पता है ग्रेविटेशन का फॉर्म किया था, ग्रेविटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो सिमिलरली इन्होंने भी इसी तरह इसको इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको पता चला कि ये जो चार्जेस है, इस चार्जेस को लेकर कुछ ना कुछ तो भी एक लॉ ये फॉलो करते हैं। ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस ऐसे ही कहीं यहाँ से उठकर यहाँ नहीं जाएंगे, या यहाँ से वो नीचे फॉल नहीं करेंगे। मतलब वो जो चार्जेस है, ये चार्जेस कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, और उसी लॉ फॉलो करने के लिए उन्होंने 4 तरह के एक्सपेरिमेंट किए, 4 तरह की मेथड्स उन्होंने हम लोगों के सामने रखी। तो सबसे पहले उन्होंने जो फॉर्म बताया हम लोगों को, जो लॉ उन्होंने एक्सप्लेन किया सबसे पहले लेकर, तो वो जो लॉ था, वो लॉ था स्केलर फॉर्म को लेके। मतलब क्या कि सिंपल बता सकते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया स्केलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में एक्सप्लेन किया उन्होंने? ये जो स्केलर फॉर्म है, इस स्केलर फॉर्म में उन्होंने सबसे पहले कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन किया। तो सिंपल इसका स्टेटमेंट क्या है कि जो कोई भी फोर्स है, ये जो चार्जेस है, इस चार्जेस के अंदर जो कोई भी फोर्स है, ये फोर्स एक तो अट्रैक्टेड है या तो रिपल्शन वाला है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, इसको बी केयरफुली पढ़ो। ये जो फोर्स है, मतलब कूलम्स लॉ के अंदर उन्होंने जो 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे जो कि रेस्ट पोजीशन में थे, उस पॉइंट चार्जेस को लेके उन्होंने क्या बताया था कि ये जो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, इसके अंदर कुछ तो फोर्स है। तो ये जो फोर्स निकल के आ रहा है, एक तो ये अट्रैक्शन वाला होगा या तो ये रिपल्शन वाला होगा। जब ये अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला होगा फोर्स, तो वो फोर्स क्या करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। क्या करेगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। किसको? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मतलब 2 चार्जेस के ऊपर
दो पॉइंट चार्जेस जो आप लोगों ने लिए हैं उसके ऊपर जो कोई भी चार्ज होगा उस चार्ज को ये क्या करेंगे, उस चार्ज के प्रोडक्ट को, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन को, उसके मैग्नीट्यूड को लेके वो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। और उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, उसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इसको बहुत इजी है ये वाला बहुत इजी है। आप लोग अगर समझ जाओगे ना तो आप लोग बोलोगे सर ये इतना इजी था। आप अगर हम लोगों को इसका सिंपल एक एग्जांपल ही बता देते तो हम लोग इसको समझ जाते। चलो इसको पहले हम समझते फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसा सिमिलर है। अब मानो ये दो चार्जेस लिए हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो चार्ज है इसके ऊपर, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर Q1 चार्ज है और ये जो सेकंड वाला हम लोगों ने ले लिया इसके ऊपर Q2 चार्ज है। और ये जो दो चार्जेस है, इन दो चार्जेस के भीतर का जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है R। जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो क्या है, R। अब हम लोगों ने दो चार्जेस लिए, हम लोगों ने ये दो चार्जेस लिए। अब हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिंपल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब ये दोनों के ऊपर का जो फोर्स है, मानो ये दोनों के ऊपर का फोर्स हम लोगों ने ले लिया F। ये दोनों के ऊपर का जो भी फोर्स है वो फोर्स ले लिया हम लोगों ने F। अब ये जो फोर्स है, अब ये अगर प्लस प्लस होंगे तो रिपल्शन फोर्स होगा, ये प्लस और ये माइनस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, अट्रैक्शन रहो या रिपल्शन रहो, ये दो पॉइंट चार्जेस में का जो भी फोर्स होगा वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब इसके ऊपर के चार्जेस, एक है Q1 एक है Q2, ये दोनों का प्रोडक्ट मानो गुणाकार, प्रोडक्ट मानो क्या होता है, उसका गुणाकार होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये जो फोर्स है ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर को, डिस्टेंस कितना है उसका R, तो उसका स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको हम कैसा पढ़ सकते हैं, ये जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, Q1 Q2 को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, R स्क्वायर को। और हम लोगों को पता है अगर हमको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कोई कांस्टेंट लेते हैं जो कि है हमारा K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है ये साइन को हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, ये K इंट्रोड्यूस किया। और ये जो K है इस K को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो प्रोपोर्शनल था उस प्रोपोर्शनल को निकालने के बाद जो कांस्टेंट लिया गया उसको। और दूसरी बात हम लोगों ने क्या कहा था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड डिपेंड होता है ये जो F है इसके Q1 और Q2 और R के यूनिट्स को लेकर, ये चारों के यूनिट्स को लेकर उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। सिमिलरली जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगा इसको एक्सप्रेस करोगे तो इसका जो मीडियम होगा वो मीडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, चलो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जब किया था तो हम लोगों ने बताया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था हमारा R स्क्वायर। तो इसी को हम लोगों ने क्या किया था कि इनवर्सली ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है इसको हम लोगों ने रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, K लिख दिया था, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां तक तो हमारा हो गया था। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका नेचर समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जब दो चार्जेस है, देखो ये वाली डायग्राम में देखो, ये वाला F1 ये वाला F2। अब यहां पे दो चार्जेस है, दोनों चार्ज के ऊपर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर
चार्जेस क्या है, एक के ऊपर है -Q1 और दूसरे के ऊपर है -Q2। दैट मीन्स ये दोनों के बीच में जो भी चार्ज है वो चार्ज कैसा है, सिमिलर चार्ज है, सेम चार्ज है। और हम लोगों को पता है अगर सेम चार्ज होगा तो इन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसलिए F2 इधर जा रहा है, F1 इधर आ रहा है, आपका F1 इधर आ रहा है। और जब लेकिन सेम पॉइंट मासेस लिए, लेकिन हम लोगों ने चार्ज उनके ऊपर प्लस प्लस रख दिया, फिर से प्लस प्लस रख दिया, मतलब चार्ज कैसा हो गया हमारा, सिमिलर हो गया, मतलब कैसा हो गया, सेम हो गया। फिर यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी आपको पता है कि ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस सेम रहने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। और जब इसके भीतर हम लोग देखेंगे कि Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 जो है हमारा वो निगेटिव है, ये दोनों के भीतर क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये एक दूसरे के ऊपर खींचे चले जाएंगे। और ये जो हमारा लॉ है, ये लॉ तीनों के लिए सेम है, जो कि हमें बताता है कि इनके ऊपर का जो भी फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विच इज ऑन दैट पॉइंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बराबर। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट वन टॉपिक, दैट इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को कहते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जब ये जो नाम है हमारा, इसके अंदर हम लोगों को पता है कि क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ये जो है ये कांस्टेंट आ रहा है। और हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक कांस्टेंट यहाँ पे लिया था, मतलब जो भी कांस्टेंट की बात चल रही है वो इस के को लेकर चल रही है। मतलब जो हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशन होगा, उस सेकंड एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोगों को क्या देखना है कि जो हम लोगों ने के यूज़ किया, जो कांस्टेंट यूज़ किया, उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस हम लोगों को करना है। अब जब कूलम्ब्स लॉ को हम लोगों ने डिस्कस किया तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो चार्ज थे वो रेस्ट पोजीशन में थे, मतलब कैसे थे, वो स्टेशनरी थे। रेस्ट माने कैसे थे, वो स्टेशनरी थे। और वो जो चार्ज थे वो चार्ज किसके अंदर प्रेजेंट थे, एक वैक्यूम मीडियम के अंदर प्रेजेंट थे। वैक्यूम मीडियम मीन्स वहाँ पे किसी भी प्रकार का मीडियम अवेलेबल नहीं है, ना एयर मीडियम है, ना डेंसर मीडियम है, ना किसी भी प्रकार का मीडियम है। लेकिन जब हम किसी चार्ज को हम लोग अगर मटेरियल मीडियम के अंदर प्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोगों ने जो पहले देखा था कि जो चार्ज था हमारा, वो जो चार्ज था वो कैसा था, रेस्ट में था और वैक्यूम में था। अब यही वाला चार्ज हम लोग उठाते हैं और उसको उठाकर हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल मीडियम में रखते हैं। मटेरियल मीडियम यानी उसको उठाकर हम लोग वाटर में रख सकते हैं, माइका में रख सकते हैं, या किसी भी पैराफाइन पेपर के ऊपर उसको हम लोग रख सकते हैं। अब इसके ऊपर वो मीडियम का किस प्रकार से अफेक्ट होता है, उस चार्जेस को लेकर वो हम लोगों को थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करना है। अब दो जो चार्जेस है, वो चार्जेस मानो किसी मीडियम में रख दिए हमने, किसी भी मीडियम में रख दिए। अब जब हमने उसको कोई भी मीडियम में रख दिया तो उसका फार्मूला कैसा हो जाएगा, सिंपली कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स अब किसके रिलेटेड आएगा, उस मीडियम के रिलेटेड आएगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, उसके ऊपर के चार्जेस को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा, उसके डिस्टेंस को लेके। लेकिन हम लोगों ने यहां पे एक देखा था कि ये जो डायरेक्टली वाला साइन था, इस साइन को हम लोगों ने रिमूव किया, उसके जगह हम लोगों ने के इंट्रोड्यूस किया था, और इसको कहा था हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और उसी के की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे रख दी, जो कि हमें बताती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या बताती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इसके अंदर ये जो एप्सिलॉन है दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो कि हम लोगों ने मीडियम लिया है उसकी। अब अकॉर्डिंग टू मीडियम वो चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू मीडियम वो क्या होगा, चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, अब हम लोगों ने जब ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस जब हम लोगों ने स्पेस में रखे, फ्री स्पेस में,
फ्री स्पेस यानी क्या होता है कि वहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूम मीडियम। तो इसके अंदर रखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एप्सिलॉन जो यहाँ पे था, सॉरी ये जो एप्सिलॉन था उसी को चेंज करके यहाँ पे रख दिया एप्सिलॉन 0। मतलब ये जो परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी अकॉर्डिंग टू मीडियम, हर एक मीडियम को लेकर वो क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, वो चेंज होती है। तो इसके बाद, अब इसके बाद क्या है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये मीडियम वाला फर्स्ट इक्वेशन और वैक्यूम वाला ये सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्लियरली, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 1 अपॉन, देखो यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और उसको डिवाइडेड हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, जो कि हमें क्या बताता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इन ब्रैकेट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर सिमिलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, ये वाली एक सिमिलर क्वांटिटी है, ये वाली सिमिलर क्वांटिटी है, जो कि कैंसिल हो गई। ये 1 अपॉन 4 पाई और ये वाला 1 अपॉन 4 पाई ये है। तो यहाँ पे बचा क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, सॉरी उल्टा हो गया, 1 अपॉन, अरे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब फिर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, एप्सिलॉन जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, विच इज ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर। वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर पे जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो रेशो है इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं के से। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से। और ये हम लोग सिंपली लिखते हैं कि के और एप्सिलॉन 0 जो है, इसको कई बुक्स में एप्सिलॉन 0 भी बताया गया है, इट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। अब इसी को लेके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स की हम लोग स्टडी करते हैं। आई थिंक ये बहुत इजी आप लोगों के समझ में आया होगा। एक बार इसका पीडीएफ देख लेना बी केयरफुली, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने कि ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ पे मैंने इसके लिए लिखा था आप लोगों के समझने के लिए, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। इसको एप्सिलॉन आर से बताते हैं, बुक्स की बात है, उस बुक्स को लेकर टेंशन नहीं है, हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एप्सिलॉन 0 है, सॉरी एप्सिलॉन आर जो है, ये क्या है, ये रेशो है किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और उसके फ्री स्पेस के परमिटिविटी का। अब ये कैसे होगा, अब मुझे बताइए, ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया था, यहाँ पे, जब हमारे जो चार्जेस थे वो चार्जेस कहाँ थे, किसी भी मीडियम में थे। ये आ गया आपका यहाँ पे बराबर। एप्सिलॉन 0 कब यूज किया था हम लोगों ने, जब हमारे जो चार्जेस थे वो चार्जेस कहाँ थे, वैक्यूम में थे। कहाँ पे थे, वैक्यूम में थे। तो ये जो एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन आर सिंपल हमें क्या बताता है कि ये रेशो है किसका किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी टू दी परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस और अ वैक्यूम, सिंपल। और दूसरी बात क्या है कि यही एप्सिलॉन आर, ये जो रेशो है, ये रेशो हमें क्या बताता है कि ये फोर्स भी है। ये फोर्स किसके किसके भीतर है, ये फोर्स का रेशो है एक वैक्यूम के बीच में और मीडियम के बीच में लेकर। मतलब इट इज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस विच इज प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस टू दी प्लेस्ड इन अ मीडियम। देखो बहुत इजी है ये बहुत इजी है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और
ये जो एप्सिलॉन आर है, देखो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब ये जो एप्सिलॉन आर है, इसको हम लोगों ने के नाम दिया, कहीं पे इसको आप लोग एप्सिलॉन जीरो से भी देख पाओगे, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजेस कर दिए जाएंगे वहाँ पे वो बुक्स में। तो ये रेशो किसका है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो का। अब मुझे बताइए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो क्या है, ये दोनों भी परमिटिविटी है, सॉरी ये दोनों भी क्या है, परमिटिविटी है, ये दोनों भी परमिटिविटी है। मतलब ये दोनों के यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे। अगर यूनिट सेम होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका मतलब ये जो एप्सिलॉन जीरो है और ये जो के है, मतलब आपकी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको किसी भी प्रकार की डायमेंशन नहीं है, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये कैसी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और इसी एप्सिलॉन जीरो को और क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहा जाता है। अब ये था सिंपल 3 पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने देखा कि के और एप्सिलॉन आर को लेके, मतलब इसका जो रेशो है, इस रेशो के लेकर, इस रेशो के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो को एक्सप्लेन किया। मतलब इट इज द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। उसके बाद हम लोगों ने इसके फोर्स को लेके एक्सप्लेन किया, कैसे किया कि ये जो एप्सिलॉन आर है, मतलब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है या जो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये रेशो है किसका कि जो आप लोगों के चार्जेस है, उस चार्जेस के ऊपर के जो फोर्स है, चार्जेस किसमें, आपके वैक्यूम मीडियम में, टू द फोर्स ऑफ अ चार्जेस विच इज प्रेजेंट इन द मीडियम। मतलब वो मीडियम कौन सा है, यहां पे हम लोगों ने देखा वो जो मीडियम है, वो मीडियम या तो वाटर होगा या तो माइका होगा या पैराफाइन, मतलब कोई भी जनरल मटेरियल मीडियम होगा वो। चलो ये पॉइंट तो समझ में आ गए हम लोगों के। अब हम लोग क्या करते हैं, जब दो चार्जेस हम लोगों ने लिए हैं, अब ये हम लोगों ने चार्जेस तो ले लिए, अब ये चार्जेस लेने के बाद इस चार्जेस को लेकर हम लोगों ने क्या कर दिया कि एक डिस्टेंस पे रख दिया, जिसका जो डिस्टेंस है वो है आर, और ये जो 2 पॉइंट चार्जेस है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q1 और Q2 चार्ज है, और ये जो है ये हम लोगों ने रख दिए रिलेटिव परमिटिविटी में, यानी किसके अंदर रख दिए हम लोगों ने, एप्सिलॉन आर के अंदर रख दिए। जब इसको हम लोगों ने एप्सिलॉन आर के अंदर रख दिया, तो ये जो मीडियम है, इस मीडियम को जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करते वक्त इसके अंदर हम लोगों को एक बात समझना है कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर अब हम लोगों को एप्सिलॉन की जगह क्या रखना है, एप्सिलॉन आर रखना है। और जब हम लोग एप्सिलॉन आर रखते हैं तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर ये जो एप्सिलॉन आर है, मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अब रिलेटिव परमिटिविटी है या इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वाटर के अंदर होता है 80। कितना होता है वाटर के अंदर, 80 होता है। मतलब जो फोर्स होगा उन चार्जेस के ऊपर वैक्यूम और मीडियम के रेशो के अंदर का, वो होगा 80। वो क्या होगा, 80 होगा। मतलब इसको हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि ये जो वाटर के, ये मीडियम मतलब कौन सा है, वाटर। अब ये जो वाटर है, इस वाटर को हम लोग इधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, एफ वाटर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई 80, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई 80। तो इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं, कि ये जो 2 पॉइंट चार्जेस है, अगर हम लोग सेम डिस्टेंस पे अगर उसको प्लेस करते हैं वाटर के अंदर, तो उसके अंदर का जो भी फोर्स होगा वो फोर्स रिड्यूस होगा किससे, 180 से। कितने से रिड्यूस होगा, 1 डिवाइडेड बाई 80। 180 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 80 से उसका क्या होगा, फोर्स रिड्यूस होगा। ओके, इट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन।
लेकिन ये किसके होगा, वैक्यूम से होगा। किससे होगा, वैक्यूम। बोले तो अब इसका ये 1/18 रेडियस है, मतलब वैक्यूम में कितना है, वो 18 से ज़्यादा है, और इससे 18 से, वाटर में 18 से क्या है, वो कम है। स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, वाटर से कम है। ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब ये जो मटेरियल मीडियम है, ये जब रिड्यूस होता है तब उस चार्जेस के फैक्टर्स को हम लोग डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको हम लोग समझते हैं सिंपल। अब मानो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दोनों के दोनों चार्ज हम लोगों ने किस में रख दिए, पहले फ्री स्पेस में रख दिए। फ्री स्पेस में दोनों का डिस्टेंस कितना है, 18 है, समझो, हाँ समझो सिर्फ। और जब हम लोग इसको वाटर में ला लेंगे तो ये 18 से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 18 से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो पास पास आ जाएंगे। इस समझने के लिए दिया है आपके। तो ये जो सिंपल इक्वेशंस हैं, ये सिंपल इक्वेशंस है, इसको हम लोग और एक बार देख लेते हैं। देखो सिंपल, हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कूलम्ब्स लॉ। इस कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी इलेक्ट्रिक इंटरैक्शंस है वो चार्ज को लेके एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसके अंदर वो जो फोर्स है दो चार्जेस के ऊपर का, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या कोई भी फोर्स होगा, वो फोर्स उस दो बॉडी के ऊपर एक्सप्रेस करेगा, एग्जर्ट करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो या चाहे वो रिपल्शन हो। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है, इस कूलम्ब्स लॉ को इंटरैक्शंस उसी के चार्ज के अकॉर्डिंग किया गया, लेकिन जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब इसको इन्वेस्टिगेट करना किया गया, तो सिंपली ये जो चार्जेस है वो चार्जेस आपके रेस्ट पोजीशन में रह के ही उसको स्टडी किया गया था। सॉरी। उसके बाद इसके कुछ 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। सबसे पहले, सॉरी 4 पॉइंट देखने हैं हम लोगों ने। सबसे पहले आज 2 पॉइंट्स इसके देखे। एक, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम लोगों को, आप लोगों को मैं बताता हूं कि हम लोगों ने जो स्केलर्स लॉ देखा वो सिंपल हमारा है एक प्रकार का ग्रेविटेशनल लॉ। सिर्फ और सिर्फ, मैंने बताया था ना आपको कि मैं इसको सिंपल करके बताऊंगा आखिरी में, तो यही पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे मासेस को निकाल के चार्जेस रख दिए, बाकी कैसा है, सेम है। वहां पे हम लोगों ने जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया था, हम लोगों ने यहां पे ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो ये सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन अगर मैं इसको आपको पहले ही बता देता कि m1 और m2 को रिप्लेस कर दो चार्जेस से, तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने ये सबसे लास्ट बताया। ओके, तो इसी तरह हम लोगों ने क्या देखा कि जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों को बताया गया था कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो चार्जेस हम लोगों ने लिए थे, 2 चार्जेस, चाहे वो सेम चार्जेस हो, चाहे वो अनलाइक चार्जेस हो, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, 2 बॉडीज के ऊपर, उन दोनों के लेके हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स है वो फोर्स कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था R² के। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन निकाल दिया, वहां पे K रख दिया, और दिस K इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और उस प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने सेकंड पॉइंट देखा, दैट इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और उसके वक्त हम लोगों को नया एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, उस फैक्टर को नाम दिया गया, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड एज द एप्सिलॉन, दैट इज कॉल्ड एज द एप्सिलॉन। और उस एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। वैक्यूम मीडियम में उसकी वैल्यू एप्सिलॉन 0 है, और मटेरियल मीडियम के अंदर, चाहे वो माइका हो, वाटर हो या कुछ और हो, उसके भीतर उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू अलग है। और उसको ही लेकर हम लोगों ने कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाई कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक प्रकार का रेशो है जो कि रिलेटिव परमिटिविटी और, सॉरी, ये एक प्रकार का रेशो है जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी विच इज प्रेजेंट इन अ वैक्यूम मीडियम को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसी को लेके हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे, और लास्ट में हम लोगों ने ये इक्वेशन देखा, और इस इक्वेशंस के हम लोग बाद हम पता चला कि एफ वाटर के अंदर जो भी फोर्स होगा चार्जेस के ऊपर, वो वैक्यूम की तुलना में 1/18 टाइम क्या होगा, रेड्यूस रहेगा। क्या रहेगा, वो रेड्यूस रहेगा। सो
ये थे हमारे पहले 2 पॉइंट, और कल के लेक्चर में हम जो तीसरा वाला जो पॉइंट देखने वाले हैं, वो तीसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, जो कि कुलम्स लॉ को लेके एक्सप्लेन करती है। और जो चौथी वाली जो है वो है कुलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म, वो जो है वेक्टर फॉर्म वाला, कि आज हम लोगों ने जो स्केलर फॉर्म देखा उसी को लेकर हम लोगों को उसी की तरह हम लोगों को एक वेक्टर फॉर्म देखना होगा। क्या देखना होगा? एक वेक्टर फॉर्म देखना होता। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों की डिमांड थी कि सर लाइव लेक्चर और वीडियो भी प्रोवाइड कीजिए, तो लाइव लेक्चर भी आप लोगों के होके कभी कभी, और वीडियो लेक्चर्स आपके डेली अब प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। और अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट्स करो या मुझे सीधा मैसेज कर दो। आई थिंक वी होप एंजॉइंग दिस लेक्चर्स। थैंक यू गाइज एंड एंजॉय योर डे।